آغاز میں آپ کو بتائیں، سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اگلے جشن آزادی سے پہلے ہم سب آزاد ہوں گے۔ اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزڈ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ کہا 22,000 ارب سندھ حکومت کو ملے، رہنے کی بدترین جگہوں میں کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا۔ یہ 22,000 ارب روپے اب سندھ میں 7 وزراء اعلیٰ کے پاس آئیں گے، گلی محلوں تک اختیارات جائیں گے۔ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونے چاہیے، 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، 7 ڈویژنز کو 7 وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کرو، اور صرف نہیں، پنجاب کے 10 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا کے 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے، اور بلوچستان کے 8 وزرائے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزیشن کر رہے ہیں۔ سندھ کے 7 ڈویژنز تھے، ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دینے کی بات کی حمایت کرتے ہیں۔ 22,000 ارب روپے میں پورا سندھ 50 دفعہ بلڈوز ہو کر 50 دفعہ نیا سندھ بن جاتا۔ یہ 22,000 ارب روپے اب جو آئیں گے، اب ایک وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگلی جشن آزادی سے پہلے ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سندھ حکومت کا میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کہتے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کمیشن کے لیے خطات لکھیں گے۔ حکومت چاہتی ہے کیس منطقی انجام تک پہنچے۔ ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں بننے والی تحقیقاتی کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ رضا قتل کیس، سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ آج چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اس میں ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ صبح کو ہم خط لکھ دیں گے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اپائنٹ کر دیں، تاکہ ہماری جو نئی ہم نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرے اور انویسٹیگیشن بھی کرے۔ وزیر داخلہ سندھ میر رضا کے اہل خانہ سے ملنے پہنچے، لواحقین کو یقین دہانی کرائی کہ ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ آپ دیا ہے فیملی کو کہ جو بھی پولیس آفیسر سندھ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ کو اعتماد ہے تو وہ بھی اس ٹیم میں ہم ڈال دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کم از کم اس میں امپارشل ہو اور جو بھی حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہوں۔ کیس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ سربراہی ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کر رہے ہیں۔ کمیٹی تحقیقات میں پیش رفت کی روزانہ رپورٹ دے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل بورڈ کا بیان لے گی۔ معلوم کیا جائے گا کہ گولی کو سینے سے داخل اور پیٹھ سے خارج قرار دینے کی بنیاد کیا تھی۔ رپورٹ میں فرانزک شواہد فائل کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی کی سمت مختلف قرار دی گئی، پہلی رائے کی بنیاد کیا تھی۔ دونوں پوسٹ مارٹم رپورٹوں کے علاوہ زخموں، کپڑوں اور دوسرے فرانزک شواہد کا جائزہ لے گی۔ میر رضا کیس میں درج اغوا کی ایف آئی آر میں قتل کی دفعہ 302 کا اضافہ کیا گیا۔ فیروز آباد پولیس کا کہنا ہے کہ قبر کشائی اور نئی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر قتل کی دفعات شامل کی گئیں۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کی شرٹ کے سامنے والے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی شرٹ کا سینے سے کچھ حصہ جلا ہوا اور پھٹا ہوا تھا۔ میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے مختلف سیمپل تجزیے کے لیے بھیجے گئے تھے، جن میں میر رضا کی شرٹ بھی شامل تھی۔ شرٹ پر بیلسٹک اسپارک کے تجزیے کا عمل تاحال باقی ہے۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات۔ 28 جولائی کو میر رضا کہاں گئے، کس سے ملے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا نے 28 جولائی کی شب 3 ٹیلی فون کالز پر 2 افراد سے بات کی۔ میر رضا نے رات 2:13 اور 2:16 پر علی نامی شخص سے بات کی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ میر رضا کی آخری فون کال ان کے دوست عبداللہ نے ریسیو کی۔ دونوں کے درمیان 3 منٹ سے زائد بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے موبائل فون پر آخری 8 میسیجز صبح 4:20 سے 4:22 کے دوران موصول ہوئے۔ میر رضا نے ان آخری میسیجز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق آخری فون کالز اور میسیجز بھیجنے والے افراد سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میر رضا کے والد میر حسین رضا کہتے ہیں جب ہم لوکیشن پر گیسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں لوگ میر رضا کی تصویر دیکھ کر بھاگ گئے، یہاں تک کہ پولیس بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ آئی جی سندھ نے تو کہا تھا ہم واقعے کی تہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آئی جی بتائیں آپ کی تہ کہاں ہے؟
जी साहब बताया, जी साहब तो केस के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बोला 48 घंटे में। मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है इस केस के ऊपर, मर्डर के ऊपर मेहनत करते हुए वो नजर नहीं आए, नेगेटिव नजर आए हैं। जो साबित हुआ कल अल्लाह पाक की तरफ से पहला दिन था जिस जस्टिस का स्टार्ट होने का, वो कल फर्स्ट डे था जिसको रोका जा रहा था परसों। 200 मीटर पे हम किचन चले गए, वहाँ हमें गार्ड ने बताया, वापस हम उधर लोकेशन के ऊपर आए, उस गार्ड ने भी हमें क्लाउड के इलीगल कुछ गेस्ट हाउसों का बताया। वहाँ पर उन बंदों को तुमने तस्वीर दिखाई, वो भाग गए। वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन कर दी, पुलिस आ गई, पुलिस को हम दिखा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, पुलिस भी नहीं पहचान रही। उन्होंने बोला हमें एक डेड बॉडी मिली है अभी थोड़ी देर पहले, आप देखें। उन्होंने जो दिखाया रजा की वालदा को, तो वो चीखो पुकार शुरू हो गई। मीर रजा केस मुकदमे की तफ्तीश थाना फिरोजाबाद से थाना जमान टाउन मुंतकिल कर दी गई है। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान के अहकामात पर मुकदमे की तफ्तीश मुंतकिल की गई है। तफ्तीश थाना जमान टाउन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सुपुर्द की गई है। इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली तहकीकाती टीम की निगरानी में मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करेंगे। तफ्तीश इंसाफ, शफाफियत, कानून के तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। मुकदमे की तफ्तीश के बाद रिपोर्ट मुताल्लिका अदालत में पेश की जाए। मीर रजा कत्ल केस। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में दरखास्त जमा करा दी है। शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर मीर रजा जिस गेस्ट हाउस गया, उस गेस्ट हाउस की मिल्कियत शर्जील मेमन से मंसूब करना बेबुनियाद है। मेडिकल बोर्ड तब्दील कराने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम बेगलत है। शर्जील मेमन ने 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया। दरखास्त में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है। मीर रजा केस में कवरअप साबित हो रहा है और हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था, अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। जिन लोगों ने मीर रजा केस को कवरअप किया उनको भी बेनकाब होना होगा। कातिल कितने ताकतवर होंगे कि उनकी जानिब से AIG वालिदैन को हुक्म जारी कर रहा है कि बच्चे के कत्ल को खुदकुशी तस्वर कर लें। AIG को ये बयान जारी करने का हुक्म कहाँ से आया था? MQM पाकिस्तान मीर रजा केस की इन्वेस्टिगेशन से नाला। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कराची के बेटे मीर रजा के केस की तहकीकात में बड़ा हाथ हुआ है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो डॉक्टर भी मुतमईन नहीं, गोली कमर से दिल को चीरती हुई निकली है। इस केस को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। रजा की शहादत और कत्ल है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है पुलिस में, मैं उससे बहुत ज्यादा नाला हूँ और मैं समझता हूँ कि वो इसे दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरीहन नाइंसाफी जुल्म होगा। सीधा सीधा जो कातिल हैं, गेस्ट हाउस में जहाँ मीटिंग थी, ये लोग जो कि शायद गिरफ्तार हैं, किसी वाइट गाड़ी में लोग आए थे बातचीत करने, इससे चाहे वो इन्वॉल्व है। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से डॉक्टर सुमैया जो सर्जन है वो खुद मुतमईन नहीं। इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर कोई ऐसा हाथ हुआ है। मीर रजा केस में कुछ छुपाया नहीं जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की यकीन दहानी। कहा, मीर रजा अली केस की तहकीकात अब नई टीम करेगी। जिसने भी ये सफाक काम किया उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। के इंतकाल के बाद मैं खामोशी से उनके घर गया, उनके वालिद साहब से, वालदा से, उनकी बहन से, चचा से मैंने मुलाकात की। उनके एतराज़ात को वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला तक पहुँचाया। कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुरानी तफ्तीशी टीम को ख़त्म कर दिया। तहकीकाती टीमें इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट बनती है उसको फाइनलाइज करके फैमिली को मुतमईन किया जाएगा। किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाएगा और जिस किसी ने भी सफाक काम किया है उसको कानून के कटहरे में। अभी आपको मनाजिर दिखाएं इस्लामाबाद के न्यू ब्लू एरिया है जहां पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहरे से मुताल्लिक ये आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया है। न्यू ब्लू एरिया रंग बरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा है। मनाजिर आप देख सकते हैं। मक्का दिफाई मुआहरा इत्तेहाद, ईमान और भाईचारे के अज़म की तजदीद है। आतिशबाजी का नज़ारा करने से शहरियों की बड़ी तादाद न्यू ब्लू एरिया में इस वक्त मौजूद है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दिफाई मुआहरे को। पाकिस्तान सऊदी वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। काबीना इजलास में मुल्क की मौशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मक्का दिफाई मुआहरे से मुतालिक आगाह करेंगे। काबीना इजलास दोपहर 3 बजे होगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देर पाम के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीरों और मुशीरों ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई मुआहदे ने आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ा दी है। इस मुआहदे से न सिर्फ खित्ते में अमन कायम होगा बल्कि ये मुआहदा मौशी खुशहाली के दर भी खोलेगा। मालिक का दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है, खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहदा एक बहुत फख्र की बात है। कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो इन तीनों ममालिक में से किसी के ऊपर कोई अग्रेसिव स्टेप उठा सके। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। ये मुआहदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत का सबूत है। 3 मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने बेहतर हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात बहुत ही नियर फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो हल होने वाली हैं। उम्मत मुस्लिमा खुश है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक अहद किया है, एक नई तारीख रकम हुई है। इस अजीम कामयाबी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहनत, खलूस और बेहतरीन क़यादत का नुमायां किरदार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। जिला बाग के 3 और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जाएंगे। जिला बाग के 3 हलकों LA 14, 15 और 16 में 613 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उनमें से 155 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जिला बाग में 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज्यादती के केस में मुलविस एक शख्स को कश्मीर के इलेक्शन में कामयाब कराया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन का इल्जाम, धांधली के जरिए मुस्लिम लीग नून को कामयाब करा के कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया गया। 1 साल पहले ही राना सनाउल्लाह कह चुके थे कि कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। नून लीग के बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चलने वाली नहीं। धांधली से जितवा कर जो है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गलत मैसेज भेजा गया है। पहले ही नून लीग के जो वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह जो हैं, वो उनका आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम वहाँ हुकूमत बनाएंगे। तो वहाँ जो जर्नलिस्ट दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा जी कैसे आप बनाएंगे? तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब की जो 10 सीटें हैं पाकिस्तान में वो तो मेरी जेब में हैं और हम जो है वो 11 से शुरू करेंगे। मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि नून लीग की ये हुकूमत चलने वाली नहीं। पहले ही हालात ख़राब हैं और ये और ज़्यादा ख़राब होंगे। जो इनका तर्ज़ अमल है, तर्ज़ गुफ्तगू है, तर्ज़ सियासत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को नून लीग से राबतों से रोक दिया गया। ज़राए का कहना है PP क़यादत ने PP रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस को नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं, जिसमें कहा गया है वफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं से राबतों से गुरेज किया जाए। लीगी रहनुमाओं के सियासी पैगामात के जवाब भी ना देने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं 27 सितंबर के एहतजाज का ऐलान मुशावरत से किया गया। एहतजाज को खुद लीड करूंगा, कम अज़ कम 20 लाख लोग आएंगे। डिजिटल मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने कहा मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं हुई, सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। मुझे नाअहल या गिरफ्तार किया गया तो फिर ये झंडा कोई और थामेगा। वीडियो रिकॉर्ड करा दी जिसमें गिरफ्तारी के बाद के अहकामात हैं। आज रात पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास बुलाया है। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल का ऐलान हो सकता है। इमरजेंसी कॉल के बावजूद 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रहेगी। पूरी क़यादत मुत्तफ़िक है, मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बार जीत की सोच से कश्तियाँ जलाकर निकलेंगे। ये एहतजाज एक दिन का होगा, ना एक जगह पर होगा। केसेस की मेरिट पर समाअत और अदालत से ही बानी की रिहाई चाहते हैं। बानी PTI की मुलाकातों की बहाली हमारा दूसरा मुतालबा है। दोनों मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। जिद्दोजहद पुरअमन होगी। हमारी सफ़ों में मुसल्लह अफराद की गुंजाइश नहीं।
کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے خود قانون کے حوالے کریں گے. خیبر سے کراچی تک لوگوں کو موبلائز کروں گا. اس بار پنجاب کو بھی نکلنا ہوگا.